Hello friends, good morning, good noon and good evening to each and all. Welcome to the world of literature. Dear friends, in this video we are going to discuss about the next short story from Malgudi Days written by R.K. Narayan, story number 8, A Shadow. Before going to start the entire story, I would like to introduce the leading characters of this short story. As I told you many times in my previous videos that character is the heart of short story. If we talk about this short story, here we have only one single leading character and he is Shambhu. As I told you that R.K. Narayan, he focuses much on the child characters. So, most of the short stories of R.K. Narayan revolve around the leading characters, around the child characters. So, here in this story we have character of Shambhu. He is a schoolboy. Then we have another minor characters like his mother and his father. So, around these three leading characters the entire story revolves. So, among these three characters the leading character is of Shambhu, and his father and his mother, they also play a minor role in this short story. So, R.K. Narayan has dived deep into the mind and heart of his characters and brings the pearls of understanding. So, let us discuss what happens in this story. The story, A Shadow. It opens with the leading character of the short story, Shambhu. Shambhu demanded, "You must give me 4 annas to see the film tomorrow." His mother was horrified. How could this boy? She had been dreaming for 6 months past the arrival of the film. He could people began to see him on the screen when they knew he was no more. She had had a vague hope that the producers might not release the picture out of the consideration of her feelings, and when a procession appeared in the street with tom-tom and band and with young boys carrying placards and huge colored portraits of her husband, she resolved to go out of town for a while, but it was a desperate and unpractical resolve. Now the picture had arrived. The husband was going to speak, move and sing for at least 6 hours a day in that theatre 3 streets off. So, dear friends, in the very opening paragraph of this story, R.K. Narayan has launched 2 characters of the story. The first character is launched in the beginning of the short story, in the very first paragraph, in the very first line and the first word, Shambhu. So, Shambhu, as I told you that he is a schoolboy, and in the very beginning line, R.K. Narayan says that Shambhu demanded. See, again it is typical R.K. Narayan. Instead of the word demanded, R.K. Narayan might have written the word said or told, but here R.K. Narayan intentionally has put this word demanded. तो यहाँ पे आर के नारायण ने जो फर्स्ट जो वर्ड है डिमांडेड,
वहाँ से ही पता चल जाता है कि आर के नारायण ने चाइल्ड साइकोलॉजी को कितना गहराई से उन्होंने स्टडी किया होगा। तो शंभू जो है वो डिमांड कर रहा है, अपनी माँ से बोल रहा है, या तो रिक्वेस्टेड भी लिख सकता, आर के नारायण रिक्वेस्टेड भी लिख सकते थे, सेड भी लिख सकते थे, टोल्ड भी लिख सकते थे, लेकिन फिर भी आर के नारायण ने यहाँ पे वर्ड लिखा है डिमांडेड, मतलब कि छोटे बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर जिद करते हैं। तो यहाँ पे शंभू ने डिमांड किया अपनी माँ से, क्या किया, यू मस्ट गिव मी 4 आनास टू सी द फिल्म टुमारो। See again, if you are a good reader, then you can understand the time limit or the background of the time from this word 4 आनास। तो 4 आना वर्ड को पढ़ करके ही हमें पता चल जाता है, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 4 आने की बात कर रहे हैं आर के नारायण। तो अभी तो आने तो चल ही नहीं रहे हैं, अभी तो 5-10 रुपीज़ भी, मतलब कि आज की डेट में 5-10 रुपीज़ की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो शंभू जो है वो 4 आना अपनी माँ से मांग रहा है। क्यों मांग रहा है, टू सी द फिल्म टुमारो। और उसके आगे आर के नारायण ने एक मॉडल ऑक्जुलरीज लगाया हुआ है मस्ट। तो थोड़ा बहुत अगर आपको मॉडल ऑक्जुलरीज भी समझ में आता हो तो मस्ट जो होता है वो कंपल्सन शो करता है। तो शंभू जो है अपनी मम्मी से डिमांड कर रहा है, अपनी माँ से डिमांड कर रहा है कि मम्मी आपको मुझे 4 आना देना ही पड़ेगा टू सी द फिल्म टुमारो, पिक्चर देखने के लिए मुझे ये 4 आने चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ से पता चलता है कि शंभू कितना जिद्दी होगा। इसके साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि आर के नारायण ने चाइल्ड साइकोलॉजी को कितनी गहराई से समझा है। और उससे आगे नॉट ओनली चाइल्ड साइकोलॉजी, आर के नारायण हैज़ ऑल्सो स्टडीड द वुमेन साइकोलॉजी ऑल्सो। आगे आर के नारायण लिखता है कि हीज मदर वॉज हॉरिफाइड। हॉरिफाइड का मतलब होता है घबराहट फील करना, महसूस करना। उसकी मदर जो है बहुत ही हॉरिफाइड, मतलब कि बहुत ही टेंशन में आ गई। हॉरिफाइड यानी कि डर गई। उन्होंने बताया कि हाउ कुड दिस बॉय, शी हैड बीन ड्रेडिंग फॉर 6 months पास द अराइवल ऑफ द फिल्म। मतलब कि लास्ट 6 महीने से आर के नारायण शंभू की जो मदर है वो ड्रेडिंग फॉर 6 months पास, मतलब 6 महीने से इस फिल्म का वो लगातार इंतजार कर रही थी, बेसब्री से इंतजार कर रही थी। How could people bear to see him on the screen when they know he was no more? मतलब कि शंभू की मदर सोच रही है। देखो आर के नारायण की अगर ये भी एक विशेषता है कि बहुत ही कम शब्दों के अंदर उन्होंने एक ही लाइन के अंदर बता दिया कि शंभूज फादर इज नो मोर। साथ ही साथ अगर आपने ध्यान से ढंग से पढ़ा हो, सुना हो, तो आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये जो फिल्म रिलीज़ होने वाली थी जिसके बारे में शंभू 4 आना डिमांड कर रहा है, वो फिल्म उसके पिताजी की थी। इन दैट फिल्म शंभूज फादर इज गोइंग टू प्ले अ लीडिंग रोल इन द फिल्म। और इसके लिए उसकी वाइफ, मतलब कि शंभू की जो मदर है, वो सोच रही थी कि शायद प्रोड्यूसर ये फिल्म को रिलीज़ ना करे, मेरी भावनाओं को समझे। और आगे साथ ही साथ ये भी बोल रही है कि लोग कैसे मेरे हस्बैंड को स्क्रीन पे देख के सह पाएंगे और वो उनको मतलब कि कैसे समझ पाएंगे, जबकि वो हालांकि ही इज़ नो मोर। मतलब कि इसी लाइन से पता चल जाता है कि नाउ शंभूज फादर इज़ डेड, ही इज़ नो मोर। शंभू के फादर जो है उनकी मृत्यु हो गई है, और मृत्यु होने के पहले उन्होंने ये फिल्म जो थी उसके अंदर उन्होंने अपना किरदार अदा किया हुआ है। और वो फिल्म के लिए उसकी मदर, आई मीन टू से शंभू की मदर 6 महीने से इंतज़ार कर रही थी और चाह ये रही थी कि ये फिल्म शायद रिलीज़ ना हो। आगे देखो आर के नारायण ने लिखा है, शी हैड अ वेग होप, VAGUE। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, लेकिन यहाँ पे वेग का मतलब ये समझना है कि वेन, VAIN, मतलब कि निरर्थक ये आशा लगा करके बैठी थी कि शायद प्रोड्यूसर उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शायद ये फिल्म रिलीज़ नहीं करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि शंभू की माता ये क्यों चाह रही थी कि शायद प्रोड्यूसर ये फिल्म रिलीज़ ना करे। तो अगेन इट इज़ वुमेन साइकोलॉजी। आपको और भी गहराई में जाकर के समझना होगा कि ये ऐसा क्यों चाह रही थी, क्योंकि अगेन इट इज़ टिपिकल इंडियन वाइफ। तो किसी भी टिपिकल इंडियन वाइफ के लिए थोड़ा ये असह्य हो जाता है कि उसके हस्बैंड को मरे अभी 6 महीने भी नहीं हुए हैं और उनको फिर से वो स्क्रीन पे देखेंगे, फिर से मतलब कि अपने
हस्बैंड को स्क्रीन पे देखेंगे तो वो अपने आप पे काबू नहीं कर पाएगी, इसलिए वो चाह रही थी कि शायद प्रोड्यूसर ये फिल्म को रिलीज ना करे। एंड व्हेन अ प्रोसेशन अपीयर्ड इन द स्ट्रीट, यहाँ पे प्रोसेशन लिखा हुआ है, वैसे तो प्रोसेशन का मतलब होता है कि सरगस, लेकिन यहाँ पे पहले के ज़माने की मैं बात कर रहा हूँ, बिफोर 1947 जब कोई फिल्म रिलीज़ होती थी तो आपने पुराने फिल्मों के अंदर देखा होगा, या तो आप ये मालगुडी डेज की सीरियल भी देख लेना, 45 मंथ के अंदर भी है, और उसकी सीरियल जो है वो शायद आपने देखी हो, तो उसके अंदर भी जो फिल्म रिलीज़ होने वाली थी उसके लिए पहले एक प्रोसेसन निकलता है, एक एडवर्टाइजमेंट होती थी। वो एडवर्टाइजमेंट पैंडल साइकिल से लोग गांव-गांव घूमते थे और पैम्फलेट बांटते थे और माइक के अंदर अनाउंसमेंट करते थे। तो ये एक प्रोसेसन चल रहा था फिल्म की एडवर्टाइज के लिए। अपीयर्ड इन द स्ट्रीट विद टॉम टॉम एंड बैंड, यहाँ पे वर्ड है टॉम टॉम एंड बैंड का मतलब है कि वो ढोलक बजा करके, बैंड बजा करके लोगों को इत्तला कर रहे थे, इन्फॉर्म कर रहे थे कि पिक्चर जो है वो लगने वाली है और जिस किसी को भी देखना वो आ सकते हैं। विथ यंग बॉयज कैरिंग प्ले कार्ड्स एंड ह्यूज कलर्ड पोर्ट्रेट्स ऑफ हर हस्बैंड, और पीछे पीछे बच्चे भी जो फिल्म का पोस्टर था वो लेकर के घूम रहे थे, और पोस्टर के अंदर शंभू के पिताजी की एक पोर्ट्रेट, एक फ़ोटो लेकर के वो घूम रहे थे, क्योंकि उन्होंने इस फिल्म के अंदर लीडिंग रोल प्ले किया था। शी रिजॉल्व्ड टू गो आउट ऑफ टाउन फॉर अ वाइल, उन्होंने ये भी सोच लिया कि जब तक ये फिल्म चलेगी ये मैं गांव छोड़ के चली जाऊंगी, लेकिन अगेन बट इट वाज अ डिस्परेट एंड अनप्रैक्टिकल रिजॉल्व, लेकिन उसको ये लगा कि ये अनप्रैक्टिकल रिजॉल्व, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि गांव छोड़ के चले जाना, मतलब गांव छोड़ के चली जाएगी तो उसका हस्बैंड वापस नहीं आ जाएगा। ठीक है, जो इंसान चले जाते हैं सिर्फ उसकी यादें रह जाती हैं, इंसान तो निकल ही जाते हैं। एक हिंदी कवि बहुत अच्छा लिखते हैं, हिंदी कवि लिखते हैं कि दरिया में तूफान आते हैं और चले जाते हैं मगर कश्तियाँ रह जाती है, दरिया में तूफान आते हैं और चले जाते हैं मगर कश्तियाँ रह जाती है, दुनिया में लोग आते हैं चले जाते हैं सिर्फ उनकी यादें रह जाती है। तो यहाँ पे शंभू के फादर तो चले गए लेकिन उनकी यादें वो छोड़ के जाते हैं, और ज़्यादातर वो जो फिल्म के अंदर उन्होंने काम किया था, तो शंभू और शंभू की माता 6 महीने के बाद में शंभू के फादर के देहांत के बाद, शंभू के माता के पति के देहांत के बाद वो अपने हस्बैंड को और शंभू अपने पिताजी को फिर से स्क्रीन पे सुनेंगे, फिर से मतलब कि चलता हुआ देखेंगे। तो ये जो दृश्य है, ये जो नज़ारा है, वो शायद वो सह नहीं पाएंगे, इसलिए वो चाहती ये थी कि वो टाउन छोड़ करके चली जाए, लेकिन ये भी कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं था। नाउ द पिक्चर हैड अराइव्ड, अब तो पिक्चर आ भी गई है, लग भी गई है, और हस्बैंड वॉज गोइंग टू स्पीक मूव एंड सिंग। उस फिल्म के अंदर उसके पिता मतलब कि शंभू के फादर और शंभू के माता के हस्बैंड डायलॉग भी बोलेंगे, मूव का मतलब है यहाँ पे एक्शन भी करेंगे, सिंग मतलब गाना भी गाएंगे, और फॉर एटलीस्ट 6 आवर्स अ डे, मतलब कि दिन के अंदर 2 बार ये शो रिलीज़ होगा, तो उसके अंदर 6 घंटे के लिए उसका शंभू के फादर और शंभू के माता के हस्बैंड फिर से अलाइव होने वाले थे। इन दैट थिएटर 3 स्ट्रीट्स ऑफ, 3 गली छोड़ करके थिएटर था, वहाँ पे ये फिल्म लगने वाली थी। अब आपको पता चलना चाहिए कि शंभू क्यों डिमांड कर रहा था 4 आने के लिए। शंभू वॉज एज डिलाइटेड as if his father had come back to life. See again it is child psychology. शंभू जो कि छोटा बच्चा है वो सोच रहा था कि उसके पिताजी फिर से जिंदा होने वाले हैं। मदर want you also come and see the picture, मतलब कि बहुत ही मासूम है, और शंभू अपनी माताजी से बोल रहा है कि मम्मी क्या आप मेरे साथ चल के आप फिल्म नहीं देखोगे। उसकी माताजी आंसर दे रही है नो। लड़का फिर जिद कर रहा है, बोल रहा है कि प्लीज़ प्लीज़ यू मस्ट कम, मम्मी आप आओ ना मेरे साथ, देखते हैं फिल्म अच्छे से। शी हैड टू एक्सप्लेन टू हिम हाउ अटरली इम्पॉसिबल इट वुड बी फॉर हर टू सी द पिक्चर। लेकिन शंभू अभी इतना छोटा बच्चा था कि वो अपनी माता के भावनाओं को समझ नहीं पाता था कि उसकी माताजी उसको फिल्म देखने के लिए आने के लिए क्यों मना कर रही हैं। तो उसकी माताजी मन ही मन सोच रही कि बेटा तू अभी बहुत छोटा है, ये बातों को आप नहीं समझ पाओगे। द बॉय हैड अ सॉर्ट ऑफ रूथलेस लॉजिक
वाई शुड इट बी इम्पॉसिबल, मतलब कि अपनी माता, शंभू की माता जी बोल रहे कि ये पॉसिबल नहीं है, मैं तेरे साथ आकर के फिल्म नहीं देख सकती हूँ। तो लड़का अभी भी इतना मासूम है कि समझ ही नहीं पा रहा, अपनी माँ को पूछ रहा है कि वाई इट इज़ इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल कैसा है, 4 आने की टिकट खरीदो, कहीं भी मतलब जहाँ पे नंबर मिलता है वहाँ पे बैठो और फिल्म देखो, इट इज़ सो सिंपल। Aren't you seeing his photos, even that big photo on the wall every day? Again, it is woman psychology and child psychology. शंभू बोल रहा है कि आप पूरे दिन तो पिताजी की फोटो जो दीवार पे टांगी रखी है वो तो आप पूरा दिन देखते रहते हो, और उनकी फिल्म आई है तो अब आप देखने के लिए ना बोल रहे हो। अगेन ये चाइल्ड साइकोलॉजी, मतलब इट शोज दैट हाउ मच शंभूज मदर लव्स हर हस्बैंड, और ये बात शंभू भी जानता था। तो शंभू मतलब ऐसे ही इनोसेंटली बोल देता है, मम्मी आप पूरा दिन पापा का फोटो लेकर के उसके सामने बैठे रहते हो और आज उनकी फिल्म लग रही है तो आप आना नहीं चाह रहे हो, ऐसा क्यों? बट दिस फोटोज डू नॉट टॉक, मूव और सिंग। उसकी माँ बोल रही है, उसको आंसर दे रही है कि बेटा ये जो फोटो है ना ही वो टॉक करता है, ना मूव करता है, ना सिंग करता है, तो मैं ये हालात में तेरे पिताजी को नहीं देख सकती हूँ फिल्म के पर्दे पे। वो मतलब कि शंभू की माता जी शंभू को समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शंभू इतना छोटा बच्चा है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है। एंड येट यू प्रीफर दैम टू द पिक्चर विच हैज़ लाइफ। द होल ऑफ द नेक्स्ट डे शंभू वॉज इन ग्रेट एक्साइटमेंट। अगेन दूसरे दिन ये हुआ कि शंभू जो थे, मतलब कि फिल्म लगने वाली थी, दूसरे दिन इतना एग्जाइट हो गया था कि क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर पढ़ाई में बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा था। और जैसे ही मतलब कि हमने आगे 45 मंथ के अंदर देखा कि जैसे वो छोटी लड़की शांता, अब शांता के पिताजी ने सुबह में ये प्रॉमिस की थी, बेटा 5 बजे हम फिल्म देखने चलेंगे, और दोपहर के 1-2 बजे ही मतलब टीचर से वो छुट्टी मांग रहे कि मुझे 5 बजे जल्दी घर पे पहुंचना है, पिताजी मुझे बाहर लेके जाने वाले थे। इन द सेम वे शंभू, एज आई टोल्ड यू दैट ही इज़ अ स्कूल बॉय, सो शंभू वॉज सो मच एग्जाइटेड, वो इतना मतलब कि एग्जाइटेड था कि पूरी पढ़ाई के अंदर वो ध्यान नहीं दे रहा था। और इन हिज क्लासरूम वैन एवर हिज मास्टर टुक हिज आइज ऑफ हिम फॉर अ मोमेंट, he leant over and whispered to his neighbor, my father was paid 10,000 rupees to act in that film. I am seeing it this evening. Aren't you also coming? मतलब कि जैसे टीचर की नज़र हटती थी, ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखने के लिए जाते थे, तो शंभू ये मौका पा करके अपने बगल में बैठे दोस्त से ये कह रहा है, नेबर से ये बोल रहा है कि इस फिल्म के लिए मेरे पिताजी को 10,000 रुपीज़ मिले थे। सी अगेन, जहाँ पे फिल्म की टिकट 4 आना हो और वहाँ पे उनके पिताजी को 10,000 रुपीज़ मिल रहे थे ये फिल्म को फिल्माने के लिए, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 10,000 वॉज अ वेरी बिग अमाउंट ड्यूरिंग दैट टाइम। तो उस वक्त 10,000 रुपया बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। तो ये पिताजी की मतलब कि पिताजी के बारे में वो प्राउड फील कर रहा है, अपने पड़ोस में बैठे दोस्त से ये बता रहा है कि तू चल ना मेरे साथ फिल्म देखते हैं, और मेरे पिताजी को इस फिल्म के लिए 10,000 रुपये दिए थे। आई एम सीइंग इट दिस इवनिंग, और मैं तो ये शाम को ये फिल्म देखने जा ही रहा हूँ। आई एम सीइंग इट दिस इवनिंग, आरंट यू ऑल्सो कमिंग, क्या तू भी मेरे साथ चलेगा? टू सी कुमारी sneered his friend, he hated Tamil pictures, I won't even pass that way. उसका दोस्त जो है बोल रहा है कि कौन सी कुमारी फिल्म की बात कर रहा है, वो तमिल फिल्म है, आई डोंट लाइक तमिल फिल्म्स। सी यहाँ से एमसीक्यू आपको पूछा जाए कि कौन से फिल्म के अंदर शंभू के फादर ने रोल किया था, या तो कौन सा फिल्म शंभू देखना चाह रहा था, तो फिल्म का नाम है कुमारी। तो उसके फ्रेंड ने बता दिया, नहीं आई हेट तमिल फिल्म्स, मुझे तमिल फिल्म अच्छी नहीं लगती है, और मैं तो मतलब उसकी बॉर्ड लगती है तो मैं उस रास्ते से भी नहीं गुजरता जहाँ पे तमिल फिल्म लगी हुई हो। ये बोला तो शंभू को ठीक नहीं लगा, क्योंकि उस फिल्म के अंदर उसके पिताजी ने काम किया था। अब शंभू उसको प्रोटेक्ट करते हुए बता रहा है, दिस इज़ नॉट लाइक अदर तमिल फिल्म्स, माई फादर यूज्ड टू रीड द स्टोरी टू अस एवरी नाइट, इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, ही रॉट द होल स्टोरी हिमसेल्फ, ही वॉज पेड 10,000 रुपीज़ फॉर राइटिंग एंड एक्टिंग, आई विल take you to the picture if you are also coming.
शंभू प्रोटेक्ट करते हुए बता रहा है कि देखो वो कोई ऐसी वैसी तमिल फिल्म नहीं है, इट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी तमिल फिल्म। अब मुझको ये ऑर्डिनरी क्यों नहीं लग रही है, बिकॉज उसके पिताजी ने उसके अंदर रोल किया हुआ है। और प्रोटेक्ट करते हुए आगे बता रहा है कि माई फादर यूज्ड टू रीड द स्टोरी टू अस एवरी नाइट, और हर शाम मेरे पिताजी हमारे साथ बैठ करके उसकी कहानी का जो प्लॉट था, वो कहानी जो थे वो हमको सुनाते थे। तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो हमने ये स्टोरी को पहले से ही पढ़ रखा है, हमें पता है। तो ये स्टोरी जो है, ये फिल्म जो है, उसकी स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और ये फिल्म उन्होंने खुद से लिखी है, और उसी फिल्म के अंदर उन्होंने मेजर रोल भी एक्ट किया हुआ है। तो उनके लिए उनको 10,000 रुपीज़ भी दिए गए थे, अगर तू चाह रहा हो तो मेरे साथ आज शाम को फिल्म देखने आ सकता है। उसका फ्रेंड बोल रहा है आई वॉन्ट सी अ तमिल पिक्चर। बोला नहीं नहीं, मुझे तमिल फिल्म अच्छी नहीं लगती। फिर से वो प्रोटेक्ट करते हुए बोल रहा है कि दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी तमिल पिक्चर, इट इज एज गुड एज एन इंग्लिश पिक्चर। अगेन यू कैन सी आर के नारायण ने कितनी चाइल्ड साइकोलॉजी को, वुमेन साइकोलॉजी को और ह्यूमन साइकोलॉजी को करीब से स्टडी किया हुआ है। यहाँ पे बताया कि ये कोई ऑर्डिनरी तमिल फिल्म नहीं है। यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करके आर के नारायण लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि इट इज़ एज गुड एज एन इंग्लिश पिक्चर। सो बिफोर 1947 एक इम्प्रेशन चल रही थी कि इंग्लिश लोग, जो ब्रिटिशर्स थे, वाइट पीपल जो थे, उनका मतलब कि उनकी सिविलाइजेशन हमसे आगे थी। लोगों में ऐसी एक फॉल्स इम्प्रेशन थी। और ब्रिटिशर्स ये भी मानते थे कि ये जो इंडियंस है, दे आर वेरी मच इन्फीरियर टू अस, और इंडिया का कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो इंग्लैंड से बढ़ के हो या तो ब्रिटिशर्स से बढ़ के हो। तो यहाँ पे लोगों के बीच ये एक बात भी चल रही थी, लोग ये सोच भी रहे थे कि इंग्लिश फिल्म है या तो इंग्लिश लोग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, वो इंडिया से बहुत अधिकतम अच्छी है। तो यहाँ पे शंभू जो है अपने पिताजी की तारीफ़ करने के लिए, उनको अप्रिशिएट करने के लिए बोल रहा है कि तमिल फिल्म कोई ऑर्डिनरी तमिल फिल्म नहीं है, लेकिन ये इंग्लिश पिक्चर जैसी बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। बट शंभूज फ्रेंड वॉज एडमंड, मतलब कि शंभू का फ्रेंड जो था, एडमंड का मतलब जिद्दी था, बोले नहीं यार मुझे नहीं देखनी है फिल्म। शंभू हैड टू गो अलोन। तो शंभू के साथ ना ही उसकी माताजी आ रहे हैं, ना ही उसका फ्रेंड आ रहा है, एंड सी द पिक्चर, वो अकेला फिल्म देखने जाता है। अब देखिए वाकया क्या बनता है। इट वॉज एन अटेम्प्ट एट अ न्यू स्टाइल इन तमिल फिल्म्स, अ मॉडर्न स्टोरी विथ अ मिनिमम ऑफ म्यूजिक। It was the story of Kumari, a young girl who refused to marry at 14 but wanted to study in a university and earn an independent living, and was cast away by her stern father in bracket Shambhu's father and forgiven in the end. So again it is the brevity of R.K. Narayan. Within only 4 or 5 lines, R.K. Narayan has unrevealed the entire story of the film. 4 ही लाइन के अंदर पूरी कहानी जो है उन्होंने बता दी। एक्चुअली ये जो फिल्म थी कुमारी, वो फिल्म तमिल फिल्म थी, नंबर 1। नंबर 2, ये फिल्म के अंदर एक नया एक्सपेरिमेंट भी किया गया था, जिसके अंदर म्यूज़िक बहुत कम था और कहानी पे ज़्यादा फोकस था। थर्ड थिंग, ये जो कहानी है वो एक कुमारी, एक यंग लेडी की, एक लेडी तो नहीं बोल सकते, एक छोटी सी लड़की, यंग गर्ल की कहानी है, जिसकी उम्र 14 साल की है। और बिफोर 1947 हमारे इंडिया के अंदर एक ये प्रथा थी कि बाल विवाह कर दिया जाता था। मतलब कि छोटे छोटे बच्चों की बहुत कम उम्र के अंदर शादियाँ हो जाती, 10-12 साल के लड़के लड़कियाँ होते थे, शादी हो जाया करती थी। तो कुमारी की उम्र 14 साल की हो चुकी है, लेकिन कुमारी के माता पिताजी उसकी शादी करवाना चाह रहे हैं। लेकिन कुमारी जो है वो आगे यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करना चाह रही है, और वो घर के अंदर एक बगावत करती है अपने पिताजी के सामने कि मतलब आई डोंट वांट टू गेट मैरी, मुझे शादी नहीं करनी है अभी, और मैं आगे पढ़ना चाह रही हूँ। और पिताजी के और कुमारी के बीच में संघर्ष चलता है, और अल्टीमेटली कुमारी की बात को ध्यान में रखते हुए उनको यूनिवर्सिटी की स्टडी के लिए परमिशन मिल जाती है। और यहाँ पे इस फिल्म का जो हेतु है, इस फिल्म का जो
गोल है, मैसेज ये है कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए और कम उम्र के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए। इट वॉज द मैसेज ऑफ दिस फिल्म। ये फिल्म का मैसेज है जो ऑडियंस को डायरेक्टर ये मैसेज देना चाह रहे हैं। तो आर के नारायण ने छोटी सी 4 लाइन के अंदर पूरी कहानी यहाँ पे बता दी। तो एक तीर से 2 शिकार आर के नारायण ने कर दिए। 4 लाइन के अंदर हमें ये भी एक सीख दे दी कि कम उम्र के अंदर शादी नहीं करनी चाहिए, साथ ही साथ फिल्म की भी बात कर दी। और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर शंभूज फादर जो लिखा हुआ है उसका मतलब ये है कि शंभू के फादर फिल्म के अंदर फादर का ही रोल कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिनल लाइफ के अंदर वो शंभू के फादर है और फिल्म लाइफ के अंदर वो कुमारी करके एक छोटी लड़की है जिसकी उम्र 14 साल की है, उसके पिताजी है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट द मैसेज ऑफ द स्टोरी। आगे बढ़ते हैं। शंभू सिटिंग इन द 4 आना क्लास। अब देखो फिल्म चालू हो रही है, तो शंभू ने 4 आना क्लास की टिकट ली हुई है। शंभू आगे बैठ गया है। वॉज ईगरली वेटिंग फॉर द पिक्चर टू बिगिन। और फिल्म का वो बेसब्री से इंतजार कर रहा था। इट वॉज 6 months since he had seen his father and he missed him badly at home. 6 महीने हो गए थे, उनके पिताजी का देहांत हो गया था। शंभू फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आफ्टर द 6 month he was going to see his father again on the screen. 6 महीने के बाद में ये छोटा लड़का अपने पिताजी को फिर से वो स्क्रीन पे देखेगा। द हॉल डार्कन्ड, मतलब लाइटें बंद हो गई। शंभू sat through the trailers and slide advertisements without enthusiasm. मतलब फिल्म चालू हुई, उससे पहले ट्रेलर दिखाया गया, एडवर्टाइजमेंट भी चली, लेकिन उसके अंदर उसको इंटरेस्ट नहीं था, एंथुजियाज्म बिल्कुल ही नहीं आया। और फाइनली फिल्म स्टार्ट हो गई। फाइनली हिज फादर केम ऑन द स्क्रीन। ही वॉज वियरिंग जस्ट द धोती एंड द शर्ट ही यूज्ड टू वियर एट होम। ही वॉज सिटिंग एट हिज टेबल जस्ट as he used to sit at home, and then a little girl came up and he patted her on the head and spoke to her exactly as he used to speak to Shambhu. And then father taught the girl arithmetic. She had a slate on her knee and he dictated to her a cartman once 2 आना per mile. Ram has 3 annas on hand. How far will the cartman carry him? The girl chewed her slate pencil and blinked. Father was showing signs of impatience. Go on, Kumari, Shambhu muttered. Say something, otherwise you will receive a slap presently. I know him better than you do. Kumari, however, was a better arithmetician than Shambhu. She gave the right answer. Father was delighted. How he would jump about in sheer delight whenever Shambhu solved a sum correctly. Shambhu was reminded of a particular occasion when, by sheer fluke, he blundered through a puzzle about a cistern with a leak and tap above it. How father jumped out of his chair when he heard Shambhu declare that it would take 3 hours for the cistern to fill again. So here in this paragraph, R.K. Narayan has very skillfully narrated the parallel scenes. यहाँ पे 2 scenes parallel चल रहे हैं। अब देखो पूरा, जैसे कि मैं ये लाइन टू लाइन पढ़ रहा हूँ, आपके सामने पूरा पिक्चर क्रिएट होना चाहिए, लगना चाहिए कि आप ही शंभू हो, आपके सामने ही स्क्रीन चल रही है और पूरी ये जो कहानी है आपके सामने देखनी चाहिए आपको। नाउ व्हाट हैपन्स, देखो शंभू थिएटर के अंदर बैठा हुआ है, फर्स्ट रो के अंदर बैठा हुआ है, फिल्म चालू हो चुकी है। पहले फिल्म के अंदर उसके पिताजी ने वही धोती पहन रखी है, वही शर्ट पहन रखी है कि जो कि वो हर रोज़ घर पे पहनते थे। अगेन it is typical R.K. Narayan, dhoti and shirt. It indicates typical South Indianness. साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग धोती और शर्ट ही पहनते हैं, तो वही फिल्म के अंदर उन्होंने पहन रखा है। फिल्म के अंदर भी शंभू के फादर का ही रोल कर रहे हैं। और ही वॉज सिटिंग एट हिज टेबल जस्ट एज ही यूज्ड टू सिट एट होम। जैसे घर पे जिस अंदाज में वो घर पे बैठते थे, उसी अंदाज के अंदर टेबल के पास चेयर के अंदर
शंभू के फादर बैठे हुए हैं फिल्म के अंदर। जैसे ही वो टेबल चेयर पे बैठे हुए हैं, एक छोटी लड़की आती है। लड़की को देख उसके पिताजी उसके सर पे हाथ रखते हैं और स्पोक हर एग्जैक्टली एज ही यूज्ड टू स्पीक टू शंभू, और जैसे शंभू के साथ घर पे बात करते थे बिल्कुल उसी अंदाज के अंदर, उतने ही प्यार से फिल्म के अंदर उनकी जो लड़की उनसे वो ये बात कर रहे हैं। और उसके बाद में उसके फादर ने एरिथमेटिक सिखाना चालू कर दिया, बीज गणित। सी अगेन मोस्ट ऑफ द इन मोस्ट ऑफ द शॉर्ट स्टोरीज आर.के. नारायण एरिथमेटिक सब्जेक्ट पे और इंग्लिश सब्जेक्ट पे वो ज़्यादा जोर देते थे, क्योंकि आर.के. नारायण का खुद का एरिथमेटिक बहुत ही कमज़ोर था। तो जितने भी मतलब कि यहाँ पे चाइल्ड कैरेक्टर्स है, जितनी भी कहानियों के अंदर या तो उपन्यास के अंदर, वो एरिथमेटिक की बात आर.के. नारायण बिल्कुल करते ही करते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज के भी बात करते हैं, क्योंकि आर.के. नारायण का इंग्लिश भी कमज़ोर था जब वो स्कूल में थे। तो खैर यहाँ पे बात यह है कि उसके फादर उसको एरिथमेटिक सिखा रहे हैं फिल्म के अंदर। शी हैड अ स्लेट ऑन हर नी, और उन्होंने नी पे स्लेट रखी हुई है, और उनको एक प्रॉब्लम दी और कुमारी को बताया कि प्रॉब्लम को सॉल्व करो। ठीक है, अ कार्टमैन वॉन्ट्स 2 आना पर माइल। एक कार्टमैन है जो 1 माइल के 2 आना चार्ज करता है। राम हैज़ 3 आनास ऑन हैंड, और राम एक लड़का है, ऐसा ही एग्जाम्पल दिया हुआ है कि उसके पास 3 आना है। तो वो कार्टमैन उसको कितने दूर तक ले जाएगा, कितनी माइल्स तक ले जाएगा, ये क्वेश्चन, एक इश्यू, ये प्रॉब्लम, ये शंभू के फादर फिल्म के अंदर अपनी लड़की को पूछते हैं। तो जैसे ही क्वेश्चन थ्रो हुआ, गर्ल च्यूड हर स्लेट, अगेन चाइल्ड साइकोलॉजी। तो गर्ल सोचने लगी, च्यूड हर स्लेट पेंसिल, और पेन जो थी वो मुंह में दबा करके सोच रही थी, एंड ब्लिंक्ड, आंखें मूंद रही थी। और फादर वॉज शोइंग साइंस ऑफ इम्पेशंस। शंभू के फादर को लगा कि इसको ये क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, तो थोड़े इम्पेशंस हो रहे थे। और देखो शंभू, अगेन इट इज़ चाइल्ड साइकोलॉजी। शंभू थिएटर के अंदर चेयर में बैठे बैठे जोर से बोल रहा है, गो ऑन कुमारी, कुमारी जल्दी कर, फटाफट आंसर दे, से समथिंग अदरवाइज यू विल रिसीव अ स्लैप प्रेजेंटली। अगर तूने आंसर नहीं दिया तो पिताजी एक खींच कर रट्टा लगा देंगे। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसको ये अनुभव है अपने पिताजी का। क्योंकि जब उनके पिताजी क्वेश्चन पूछते, शंभू को नहीं आता था, शंभू को उसके पिताजी एक चांटा खींच के लगा देते थे। उसको लगा कि अगर तू आंसर नहीं देगी पिताजी अभी तेरे को एक चांटा लगा देंगे। आई नो हिम बेटर देन यू डू। सी अगेन बोला कि तूने तो एक ही फिल्म मेरे पिताजी के साथ तू कर रही है, मेरी तो पूरी ज़िंदगी मेरे पिताजी के साथ निकली है, तो मेरे पिताजी को तुझसे ज़्यादा, तुझसे बेहतर मैं जानता हूँ। हालांकि कुमारी जो थी वो शंभू से बहुत ही मतलब कि क्लेवर इस फिल्म के अंदर बताई गई है, क्योंकि उसको आगे और भी पढ़ाई करना है इसलिए, और उन्होंने तुरंत ही आंसर दे दिया। तो यही पूरी बात इसके अंदर चल रही है। और बता रहे कि जैसे ही कुमारी ने आंसर दिया उसके पिताजी बहुत खुश हो गए। वैसे ही जब कभी भी शंभू भी कोई क्वेश्चन पूछते और उसके पिताजी खुश हो जाते, वो मतलब खुशी के मारे उछल पड़ते, ऐसे ही द सेम थिंग हैपन्स इन दैट फिल्म। फिल्म के अंदर भी वही बात हुई। व्हेन द फिल्म एंडेड, the lights were switched on. Shambhu turned about and gazed at the aperture in the projection room as if his father had vanished into it. Again child psychology. फिल्म ख़त्म हो गई, शो ख़त्म हुआ, लाइट्स ऑन हो गई, और जो वहाँ से फोक्स आ रहा था जहाँ से वो फिल्म दिखाई जा रही थी, तो शंभू जो प्रोजेक्शन रूम था वहाँ पे देख रहा था कि पिताजी यहीं से आ रहे थे, शायद पिताजी इस रूम के अंदर ही होंगे। तो मतलब ये चाइल्ड साइकोलॉजी, शंभू समझ नहीं पा रहा है कि ये टेक्नोलॉजी है, ये वहाँ पे उसके पिताजी ओरिजिनल नहीं है लेकिन उसकी फ्लैश चल रही है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। द वर्ल्ड नाउ सिम्ड टू बी पुअरर प्लेस विदाउट फादर। अब उसके पिताजी उसके आंखों के सामने से चले गए हैं। अभी शंभू जैसा था ऐसा फिर से वो दुखी हो गया, फिर से नाउ ही बिकम्स फादरलेस। ही रैन होम, घर पे पहुँच गया। His mother was waiting for him at the door, और उसकी माता उनका इंतज़ार कर रही थी डोर पे। सॉरी। It is 9 o'clock, रात के 9 बज चुके थे। You are very late, उसकी माता जी बोल रहे बेटा 9 बज गए, इतना लेट हो गए। I would have loved it if the picture had lasted even longer,
उसकी माँ बोले बेटा 9 बज गए, इतना लेट हो गया। शंभू आंसर दे रहा है कि अगर फिल्म और भी लंबी चलती तो मुझे और भी अच्छा लगता, मैं और भी थिएटर के अंदर बैठ के पूरी फिल्म देखता। यू आर परवर्सर मदर, वाई डोंट यू सी इट। मम्मी आप बहुत जिद्दी, आप क्यों नहीं मेरे साथ फिल्म देखने आ रहे हैं। थ्रू आउट द डिनर ही केप्ट टॉकिंग। शाम को जब वो खाना खा रहा था, डिनर ले रहा था, तो पूरी फिल्म की ही बात कर रहा था और अपनी माता जी को बोल रहा था एग्जैक्टली एज फादर यूज्ड टू सिंग, एग्जैक्टली ही यूज्ड टू वॉक, एग्जैक्टली डैश डैश डैश। हिज मदर लिसन टू हिम इन ग्रीम साइलेंस। अगेन यू नो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ आर के नारायण। आपने कई बार फिल्मों के अंदर देखा होगा कि कोई कैरेक्टर बहुत ही एक्साइटेड हो करके वही बात बता रहा हो और सामने वाला उसको इत्मीनान से सुन रहा हो, और जब वो उस कहानी के अंदर या तो उस बात पे इतने खो जाता है तो सामने वाला क्या बोल रहा है वो फिर बाद में सुनते नहीं। इसलिए यहाँ पे आर के नारायण ने डैश 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 यहाँ पे लगाया हुआ है। मतलब कि जैसे ही शंभू ने अपने फादर के बारे में बात करना चालू की तो उसकी माताजी उसके शंभू के फादर के बारे में सोचने लगे, और सोचते ही सोचते उस ख्यालों में वो खो गए। तो उसकी माताजी कुछ बोली नहीं, एकदम साइलेंस हो गई। और शंभू पूछ रहा है उसको वाई डोंट यू से समथिंग मदर। शंभू बोल रहा है मम्मी आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो। उसकी माताजी जवाब दे रही है आई हैव नथिंग टू से। मैं बेटा क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए। और आगे पूछती है डोंट यू लाइक द पिक्चर। शंभू पूछ रहा है कि क्या मम्मी आपको फिल्म अच्छी नहीं लगती। शी डिडंट आंसर द क्वेश्चन शी आस्क्ड। ये प्रश्न का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन आगे वो पूछ रही है, शंभू की माताजी आगे पूछ रही है शंभू को वुड यू लाइक टू गो एंड सी द पिक्चर अगेन टुमारो। उसकी माताजी बोले कि अच्छा तुझे फिल्म देखनी है एक बार और फिर। शंभू बहुत खुश हो गया। शंभू बोला यस मदर इफ पॉसिबल एवरी डे एज लॉन्ग एज द पिक्चर इज शोन। मैं कल नहीं लेकिन जब तक ये फिल्म चलेगी, अगर तू मुझे पैसे देगी तो आई विल डेफिनेटली गो एंड वॉच द फिल्म। वो फिल्म मैं देखूंगा। विल यू गिव मी 4 आनास एवरी डे। शंभू को मतलब कि यहाँ पे अगेन इट इज चाइल्ड साइकोलॉजी। मतलब कि शंभू की माताजी ने थोड़ी सी मतलब बात क्या कर ली, बोले कि बेटा कल तुझे फिर देखने जाना है फिल्म। तो शंभू बोला कल नहीं, जब तक ये फिल्म चलेगी तब तक मैं एक शो देखना चाहूँगा, अगर आप मुझे पैसे दो तो पूछ रहा है कि क्या मुझे आप हर रोज़ पैसे दोगे। उसकी माताजी बोल रही है यस। विल यू लेट मी सी बोथ द शोज एवरी डे। अगेन इट इज चाइल्ड साइकोलॉजी। उसकी माताजी ने बोला कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, हर रोज़ एक शो तू देखने जाना, मैं पैसे तुझे दे दूंगी। तो उसकी लालच और बढ़ गई। शंभू बोल रहा है कि क्या मम्मी मैं हर रोज़ 2 शोज देखने जा सकता हूँ। उसकी माताजी बोल रही है ओ नो यू कांट डू दैट। व्हाट इज़ टू हैपन टू योर लेसन्स। अगर आप दिन में 2 शो देखने जाओगे तो फिर आपकी पढ़ाई का क्या होगा। वॉन्ट यू कम एंड सी द पिक्चर मदर। शंभू को लगा कि ये पढ़ाई की बात कर ली, मतलब पढ़ाई की बात छेड़ दी। उसको लगा कि मम्मी फिर ना बोल देगी। उन्होंने तुरंत बात घुमा दी और पूछा कि मम्मी आप भी चलो ना मेरे साथ पिक्चर देखने के लिए। उसकी माताजी बोल रही है नो इम्पॉसिबल, नहीं बेटा मैं नहीं आ सकती। फॉर अ वीक मोर, 1 हफ्ता और चलने वाली थी फिल्म। 3 hours इन द डे शंभू लिव्ड इन हिज फादर्स कंपनी एंड फेल्ट डिप्रेस्ड एट द एंड ऑफ एवरी शो। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछते हैं, जब तक शो चला तब तक हर रोज़ 3 घंटे शंभू को अपने फादर की कंपनी मिल जाया करती थी, और हर एक शो के एंड के अंदर शंभू जो थे वो डिप्रेस हो जाया करता था। क्यों? क्योंकि एवरीडे इट वाज अ पार्टिंग फॉर हिम। क्योंकि जैसे ही शो एंड होता था अपने उसके पिताजी से वो दूर हो जाया करता था और दूसरे दिन के लिए उसको वेट करना पड़ता था। इसलिए उसके पिताजी से दूर होने का गम उसको था, इसलिए वो हर रोज़ शाम को जैसे ही शो एंड होता था शंभू डिप्रेस हो जाया करता था। He longed to see the night show too. रात का भी शो उसको देखने की इच्छा थी, but mother bothered too much about school lessons. Time was precious, but mother did not seem to understand it. Lessons could wait, but not father. He enlivened
those who were seeing the picture at night. He envied those who were seeing the picture at night. मतलब शंभू मन ही मन सोच रहा है, जैसे ही शो खत्म हो जाता था वो दुखी हो जाता था, मन ही मन सोच रहा था कि मम्मी एक तो है कि समझ नहीं रहे हैं, स्टडी तो फिर भी वेट करेगी, स्टडी तो पूरी ज़िंदगी होती रहेगी, लेकिन ये शो पूरी ज़िंदगी नहीं चलेगा, पिताजी पूरी ज़िंदगी हमारे साथ नहीं रहेंगे, स्टडी वेट कर सकती है लेकिन ये शो वेट नहीं कर सकता, लेकिन मम्मी जो है कि उनको पढ़ाई की पड़ी हुई है और मुझे 2 शो देखने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। और शंभू को जो लोग रात का भी शो देखने जाते थे उनसे बहुत ही ईर्ष्या होती थी। क्यों ईर्ष्या होती थी? क्योंकि लोग रात का शो देख सकते थे, शंभू नहीं देख सकता था। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि उसकी माताजी उनको परमिट नहीं कर रही थी। Unable to withstand his persuasions anymore, his mother agreed to see the picture on the last day. अब पिक्चर का लास्ट डे था। शंभू हर रोज़ आकर के अपने पिताजी के फिल्म की बात करता था, हर रोज़ एक ही क्वेश्चन पूछता था, मम्मी आप मेरे साथ चलो ना फिल्म देखने, क्यों नहीं जा रहे हो? अल्टीमेटली बच्चों की जिद ऐसी होती है कि उनके माँ बाप उसके सामने घुटने टेक देते हैं। तो शंभू की माताजी ने घुटने टेक दिए, बोले ठीक है चल, तू इतना ज़ोर कर रहा है तो मैं आज तेरे साथ फिल्म देखने आऊँगी। लास्ट डे था, लास्ट शो था। दे वेंट टू द नाइट शो। अब वो नाइट शो में गए। क्यों नाइट शो में गए? क्योंकि शंभू की माताजी उसके साथ थी। सी sat in the women's class. She had to muster all her courage to sit down for the picture. मस्टर का मतलब कलेक्ट करना, मतलब कि दिल पे पत्थर रख करके वो फिल्म देखने गई। शंभू जो थे वो जेंट्स की रो में बैठे, उनकी माताजी जो थी वो लेडीज़ रो में बैठे। She had a feeling of great relief as long as the slides, advertisements and trailer pieces lasted. When the picture began, her heart beat fast. जैसे ही एडवर्टाइज वगैरह ख़त्म हो गई, फिल्म चालू होने को हुई, जैसे ही फिल्म्स के स्टार्ट हुई, बिगिन हो गई और उसकी धड़कनें तेज़ होने लगी, शंभू की माताजी की धड़कनें तेज़ होने लगी। हर हस्बैंड टॉकिंग टू हिज वाइफ ऑन द स्क्रीन, प्लेइंग विद हिज चाइल्ड, सिंगिंग, वॉकिंग, ड्रेसिंग, सेम क्लोथ, सेम वॉइस, सेम एंगर, सेम जॉय. She felt that the whole thing was a piece of cruelty inflicted on her. See, again it is human psychology. जब शंभू for the very first time when he watched this film, वो फिल्म के अंदर देखता है तो पहले सीन के अंदर अपने पिताजी को देख रहा है और वो जो कुमारी छोटी लड़की है उसको देख रहा है। वो मैच कर रहा है, वो कंपेयर कर रहा है कि उसके साथ उसके पिताजी का कैसा बिहेवियर है और उस फिल्म के अंदर कुमारी के साथ उसके पिताजी कैसे बिहेव करते हैं। अब यहाँ पे शंभू की माता फिल्म देखने आ रही, वो भी वो फिल्म को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो वो देख रहे हैं कि उसके हस्बैंड फिल्म के अंदर उनके हस्बैंड की जो वाइफ है उसके साथ वो कैसे बात करता है, कैसे प्लेइंग विथ हिज चाइल्ड, उसके फिल्म के अंदर कुमारी के साथ कैसे खेलते हैं, कैसे सिंगिंग करते हैं, गाते हैं, वॉक करते हैं, ड्रेस करते हैं। तो देख रहे कि सेम क्लोथ, सेम वॉइस, सेम एंगर, सेम जॉय, जैसा फिल्म के अंदर है वैसा ही ओरिजिनल लाइफ के अंदर, कि एक ही लाइन के अंदर पूरी कंपैरिजन आर.के. नारायण ने दे दी। शी फेल्ट दैट द होल थिंग वाज अ पीस ऑफ क्रुएल्टी इन्फ्लेक्टेड ऑन हर। जैसे जैसे फिल्म आगे चलती है उसकी धड़कनें तेज होने लगती है और पूरा जो सीन है वो अनबेरेबल हो जाता है, असहनीय हो जाता है, वो ज़्यादा और सह नहीं सकती। शी शट हर आइज सेवरल टाइम्स। वो दृश्य, वो नज़ारा वो देख नहीं सकती थी, वो मंजर वो देख नहीं सकती थी, वो बार बार अपनी आंखें मूंद लिया करती थी। अगेन इट इज़ वुमेन साइकोलॉजी, बट द पिक्चर फैसिनेटेड हर। लेकिन फिल्म इतनी अच्छी थी और उससे भी ज़्यादा उनके अंदर जो फिल्म के अंदर उसके हस्बैंड ने जो रोल किया था वो बहुत ही एन्चेंटेड था, बहुत ही फैसिनेटेड था, तो फिल्म देखने के लिए वो मजबूर हो गई। It had the fascination of a thing which is painful. लेकिन ये जो फैसिनेशन था उसके लिए बहुत ही पेनफुल था, दर्दनाक था। And then came a scene in which he reclined in a chair reading a newspaper. See, again it is human psychology. पूरे फिल्म के अंदर शंभू जो है वो ये बात को गौर कर रहा है, वो
मतलब कंपेयर कर रहा है कि वो कुमारी के साथ कैसा बिहेव करते हैं, उसको अरिथमेटिक कैसे पढ़ाते हैं, उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं। और यहाँ पे शंभू की माता जी, पूरे फिल्म के अंदर एक सीन आ रहा है और सीन के अंदर होता ये है कि वो रिक्लाइन चेयर के अंदर उसके हस्बैंड बैठा है फिल्म के अंदर, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। वही सीन, वही वाक्य हर रोज़ उनके घर पे भी होता था। और ये सीन देखते हैं शंभू की माता जी, हाउ ही कुड सिट एब्सॉर्ब्ड इन द न्यूज़पेपर, मतलब कि न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते कितना एब्सॉर्ब, मतलब कि डूब गए हैं इन दैट years of married life, how often had she quarreled with him for it। और ओरिजिनल लाइफ के अंदर इसके लिए उसके साथ, मतलब कि शंभू की माता जी ने शंभू के फादर के साथ इस बात को लेकर के बहुत ही झगड़ा किया, क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ने में इतना डूब जाते थे कि उनके पास बगल में रखी हुई चाय जो थी वो ठंडी हो जाती थी, और इसके लिए वो झगड़ा करते थे। तो सेम थिंग हैपन्स इन द फिल्म ऑल्सो। Even on the last day, he had sat thus after dinner in his canvas chair with the newspaper before him. She had lost her temper at the sight of it and said, "You and your newspaper, I could as well go and sleep off the rest of the day," and left his company. When she saw him later, he had fallen back in his chair with the sheets of newspaper over his face dash dash dash। See again, जैसे शंभू ये फिल्म के अंदर कुमारी को शंभू के फादर अरिथमेटिक का कोई प्रॉब्लम पूछ रहे हैं, कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सम पूछ रहे हैं, तो कुमारी आंसर दे रही हो, कुमारी कोई रिएक्शन दे, उससे पहले शंभू सीट में बैठा बैठा थिएटर में चिल्लाता है कि जल्दी से आंसर दे, बना पिताजी अभी खींच के एक लगा देंगे। ये शंभू का रिएक्शन था। अब उनकी माताजी का रिएक्शन देखो। इट मीन्स सी, फिल्म इंसान को कितना अटैच करके रखती है। और शंभू की और उनके माताजी की बात तो कुछ और इसलिए है क्योंकि ये जो कैरेक्टर था वो कैरेक्टर उसके रियल लाइफ में भी थे। ठीक है, तो मतलब कि वही सीन चल रहा है। शंभू की माताजी देख रहे हैं कि फिल्म के अंदर वो रिक्लाइनिंग चेयर के अंदर बैठा है, बैठे बैठे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और न्यूज़पेपर पढ़ते 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 वो थक जाते हैं और पूरा न्यूज़पेपर उसके फेस पे कवर हो जा रहा है। ऐसे ही वाक्य, ऐसा ही हर रोज़ घटना उनके घर पे बनती थी और उनके लिए उनका झगड़ा भी होता था। और वो बोलते थे, आप और आपका ये न्यूज़पेपर, मतलब आज भी वो चिल्ला उठी थिएटर के अंदर और बोली कि आप और आपका न्यूज़पेपर, ये रिएक्शन है, ये वुमन साइकोलॉजी, ये ह्यूमन साइकोलॉजी भी है। और लास्ट डे था, मतलब कि शंभू के फादर की मृत्यु उस दिन भी यही वाकया बना था और ये लास्ट डे उनको याद आ गया और वो फिर आगे फिल्म नहीं देख सकते थे। दिस वॉज एन अनबेरेबल सीन, अ सॉब ब्रस्ट फ्रॉम हर, मतलब ये देखते ही देखते वो आगे फिल्म देख ही नहीं सकती थी। और ये जो दृश्य था, ये जो मंजर था फिल्म का, वो उनके लिए अनबेरेबल बन गया। अ सॉब ब्रस्ट फ्रॉम हर, और वो फूट फूट कर रोने लगी। Shambhu, sitting in his seat on the man's side, liked to see his father in the newspaper scene because the girl would presently come and ask him what he was reading, annoying him with questions and get what she deserved. Father would shout, "Kumari, will you go out or shall I throw you out?" That girls didn't know how to behave with father and Shambhu disliked her intensely। सी, फिल्म चल रही थी यहाँ पे पैरेलल दो सीन आर के नारायण बता रहे। एक सीन के अंदर शंभू के माताजी क्या महसूस कर रहे हैं वो हमारे सामने रखा हुआ है, और दूसरा जैसे ये मतलब न्यूज़पेपर वाला सीन चल रहा है, शंभू वॉज वेटिंग फॉर द सीन, शंभू वो सीन के लिए वेट कर रहा था। जैसे ही उनके पिताजी न्यूज़पेपर लेकर के पढ़ने लगते थे, कुमारी आती थी उसको हैरान परेशान करती थी। यही वाकया घर के अंदर भी हो रहा था। शंभू के फादर जब न्यूज़पेपर पढ़ते, शंभू आ जाता, अपने पिताजी को हैरान परेशान करता, और डिस्टर्ब होने के कारण पिताजी शंभू पे गुस्सा हो जाते और शंभू को बोलते यहाँ से जा रहा है कि खींच के एक लगा दूँ। द सेम थिंग हैपन्स इन द फिल्म ऑल्सो। फिल्म के अंदर भी यही दृश्य अंदर आ रहा है। शंभू के फादर, मतलब कि फिल्म के अंदर शंभू के फादर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। अभी कुमारी आएगी, उनको एनोइंग यानी चिढ़ाएगी या तो उनको हैरान परेशान करेगी। फादर बहुत गुस्सा हो जाएंगे और फादर ये बोलने ही वाले थे, कुमारी आप यहाँ से जा रहे हो कि मैं
आपको उठा के फेंक दूँ, यह डायलॉग सुनने के लिए शंभू जो था वो ईगरली वेट कर रहा था, बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था कि तभी वाइल अवेटिंग ईगरली द स्नमिंग ऑफ द गर्ल, शंभू हर्ड अ ब्रस्ट ऑफ सबिंग इन द विमेंस क्लास। मतलब जैसे ही फिल्म के अंदर शंभू के पिताजी कुमारी को डांटते हैं, कुमारी रोने लगती है, उसकी रोने की सिसकियाँ वो सुनता, और साथ ही साथ थिएटर के अंदर भी किसी की सिसकियाँ उसको सुनाई दी। प्रेजेंटली देयर वॉज अ स्क्रम्बल ऑफ फिट एंड क्राई, पुट द लाइट्स ऑन। अचानक से थिएटर के अंदर हल्ला मच गया, लोग चिल्लाने लगे लाइट चालू कर दो, लाइट चालू करो। एक्सीडेंट टू समवन, कुछ हो गया। जैसे लाइट ऑन हुई, द शो वॉज स्टॉप्ड, शो को बंद कर दिया। पीपल वेंट हिदर एंड दिदर, मतलब यहाँ वहाँ लोग भागने लगे। शंभू कर्सिंग दिस इंटरप्शन, शंभू को ये अच्छा नहीं लगा। क्यों ये अच्छा नहीं लगा? क्योंकि फिल्म चल रही थी, फिल्म देखने के लिए वो पूरा मतलब कि दिल लगा करके बैठा था, और ये डिस्टर्ब हो गए। फिल्म बंद हो गई, उसके फादर स्क्रीन पर से हट गए, तो शंभू को ये इंटरप्शन अच्छा नहीं लगा। स्टूड अप ऑन द बेंच, बेंच पे खड़ा हो गया, टू सी व्हाट द मैटर वॉज, और देखने लगा कि क्या मैटर चल रही है। ही सो हिज मदर बीइंग लिफ्टेड फ्रॉम द फ्लोर, देखा तो उसकी माताजी को कोई 4 आदमी उठा करके ले जा रहे थे। दैट इज माई मदर, इज शी ऑल्सो डेड, स्क्रीम्ड शंभू एंड जम्प्ड ओवर द बैरियर। मतलब जैसे ही 4 आदमी ने उठा करके उनकी माताजी को ले जा रहे थे, वो जोर से चिल्लाया कि दैट इज़ माई मदर, ये अरे ये तो मेरी माताजी है, क्या वो भी मर गई? अगेन इट इज़ चाइल्ड साइकोलॉजी। मतलब उसको ऐसा लगता है कि जब 4 आदमी किसी को उठाते हैं तो मर ही जाता है, क्योंकि उन्होंने ये दृश्य अपने पिताजी का देखा हुआ था। वो बोला कि मेरी माँ भी मर गई। जैसे ही वहाँ पे बैरियर रखा हुआ था, मतलब कि कोई पार्टीशन लगाया था, वो पार्टीशन सीधा कूद करके वहाँ पे शंभू पहुँच गया। ही वेलेड एंड क्राइड, शंभू जोर जोर से रोने लगा। समवन टोल्ड, किसी ने बताया, शी हैज़ ओनली फेंटेड, आपकी माताजी मरी नहीं है, सिर्फ फेंटेड यानी कि बेहोश हो गई है। नथिंग हैज़ हैपन टू हर, और कुछ नहीं हुआ है। डोंट मेक अ फर्स, मतलब ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दे कैरिड हर आउट एंड लेड हर इन द पैसेज, थिएटर के बाहर ले गए खुली हवा के अंदर, वहाँ पे उनको बिठाया। द लाइट्स वर पुट आउट अगेन, पीपल रिटर्न टू देयर सीट्स एंड द शो कंटिन्यूड। उनको बाहर रखा खुली हवा के अंदर, शंभू भी पास में बैठा, लोग अपने चेयर पे वापस आ गए। लाइट्स फिर ऑफ कर दी गई। फिर से जहाँ से फिल्म अटकी थी वहीं से फिल्म को आगे कंटिन्यू कर दी गई। मदर ओपन हर आइज़, वहाँ पे फिल्म चालू हो गई। यहाँ पे मदर ने आंखें खोल दी। सेट अप एंड सेड लेट अस गो अवे, शंभू की माता जैसे ही बेहोश हो गई थी, जैसे ही होश में आई, शंभू को बोले चल बेटा अब घर पे चलते हैं। शंभू भी ज़्यादा फिल्म देखने के लिए अब जिद नहीं कर रहा है। शंभू भी बोल रहा है यस मदर। ही फैच्ड अ जुटका एंड हेल्प्ड हर इनटू इट, उन्होंने एक जुटका, मैंने आपको बताया था कि घोड़ा गाड़ी टांगा लिया। फेस्ट का मतलब यहाँ पे फैर पे लेना, टांगा बुलवाया और उनके अंदर वो बैठ गए। शंभू ने अपनी माताजी की थोड़ी मदद की अंदर बैठने के लिए। एज ही वॉज क्लाइंबिंग इनटू इट हिमसेल्फ, जैसे ही वो जुटका के अंदर शंभू बैठ ही रहा था, फ्रॉम द डार्कन्ड हॉल ऑफ फैमिलियर वॉइस सेड, मतलब कि फिल्म की आवाज़ बाहर आ रही थी। जैसे ही वो अंदर बैठा कि आवाज़ कान पे पड़ी, कुमारी विल यू गो आउट और शैल आई थ्रो यू आउट। मतलब ये डायलॉग सुनने के लिए वो बेकरार था। वो डायलॉग उसने बाहर बैठे बैठे सुना, और जैसे ही ये डायलॉग उन्होंने सुना, अपने पिताजी फिल्म के अंदर बोले कि कुमारी तू जा रही कि मैं तुझे उठा करके फेंक दूँ। जैसे ही ये डायलॉग शंभू ने सुना, शंभू's हार्ट बिकेम हैवी एंड ही ब्रस्ट इनटू टीयर्स, और फूट के शंभू भी रोने लगा। ही वॉज अफेक्टेड both by his mother's breakdown and by the feeling that this was the final parting from his father. शंभू को आज ज़्यादा बेकरारी थी। शंभू आज कुछ ज़्यादा ही दुखी था, मायूस था, इसलिए क्योंकि आज 2 दुख उसको सहने पड़े। एक तो उसकी माताजी
की तबीयत ठीक नहीं थी, वो बेहोश हो गई। और दूसरा कि आज वो लास्ट सीन था, लास्ट फिल्म का शो था, और वो लास्ट सीन, लास्ट फिल्म वो देख नहीं पाया पूरी, और उसके बाद में ना फिर वो कभी अपने पिताजी को मिलेगा, ना फिर उसके पिताजी को देख पाएगा, सुन पाएगा, और इसलिए वो बहुत ही दुखी हो गया, बहुत ही मायूस हो गया। दे वर चेंजिंग द पिक्चर नेक्स्ट डे, और दूसरे दिन फिल्म चेंज होने वाली थी, और यहाँ पे ये कहानी भी ख़त्म होती है। सो इट वॉज एन इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी। R.K. Narayan has dived deep into the mind and heart of his characters. So in the entire story, R.K. Narayan presents the human psychology, child psychology and woman psychology. So here the entire story is over. पूरी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो ये कहानी के अंदर साइकोलॉजी पे R.K. नारायण ने बहुत ही जोर दिया हुआ है। So here in this way this story is over. I hope you might have enjoyed the story. Thank you very much. Have a nice day to all of you.